All right. So in the last session we saw, so I'll start this session again with a quick recap. हमने last sessions में एक तो Biot-Savart law, we saw what is that law. कौन सा law? Biot-Savart law. What was that? वो आपको बताता है what is the magnetic induction at point P due to a small length element. तो आपने एक लेंथ एलिमेंट लिया था, यू कैन टेक दैट लेंथ एलिमेंट एनीवेयर यू वांट। एक आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर था, इस वायर में से करंट आई फ्लो हो रहा है। तो एज यू नो इस चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब जब भी इस वायर में से करंट फ्लो होगा इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. Electric field is produced by a charge at rest, right? Electric field is in the surrounding medium of the source charge. यहाँ पे source current steady होना चाहिए, मतलब with time it should not change. This steady current produces magnetic field. But problem ये है कि distance कहाँ से measure करेंगे? तो distance measure करने के लिए हमने पहले इस पूरी वायर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में डिवाइड किया था। उसमें से एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया था, इस लेंथ एलिमेंट के सेंटर से हमने डिस्टेंस मेजर किया था टू दैट पॉइंट जहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला चाहिए। यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड हियर एट P बिकॉज यू हैव कंसिडर्ड ओनली अ स्मॉल एलिमेंट। आपने सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, तो स्मॉल एलिमेंट में से जो करंट पास होगा आए, उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा। तो यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R. तो अकॉर्डिंग टू Biot-Savart law, magnetic induction due to current passing through small length element is proportional to current itself, proportional to length of the element, and proportional to sine of the angle theta, where theta is angle between. आपको याद होगा हमने लेंथ एलिमेंट को वेक्टर लिया था, तो लेंथ एलिमेंट में एंड द लाइन ज्वाइनिंग, कौन सी लाइन? ये लाइन किसको ज्वाइन कर रही है? सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू दैट ऑफ पॉइंट. सो थीटा इज द एंगल between, theta is the angle between the line joining the center of the element and the point where you are supposed to find out magnetic induction and the length element. तो वो थीटा एंगल क्या था आपको वो पता होना चाहिए, right? So theta was angle between length element and the line joining center of the element to that of point P. So magnetic induction is directly proportional to I dl sine theta and inversely proportional to R square, square of the distance between the point and the element. Correct. ये हमने देखा था कल Biot-Savart law. Then we spoke about constant of proportionality. K depends on, किस पे डिपेंड करता है? Number one, which system you are using, SI, CGS. Secondly, surrounding space कौन सा है? What is surrounding medium? If it is free space, मतलब vacuum, तो K is equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by R square. फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर रहे थे, फिर बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए। इसको वेक्टर नोटेशन में लिखने के लिए व्हाट यू डिड वाज, आप इसको सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय R करोगे, तो यू जस्ट मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय R. ये R क्यों किया? क्योंकि I was a scalar quantity which cannot be made vector. करंट स्केलर है तो उसको वेक्टर नहीं लिख सकते, dl को वेक्टर लिख सकते क्योंकि वो वेक्टर ही है. Then I need one more parameter which is vector. So I can make this R as vector R bar. तो ये एडजस्ट करने के बाद you will have dB bar equal to mu 0 by 4 pi I dl bar cross R bar by R cube, क्योंकि by definition A bar cross B bar is AB sin theta.
तो dl bar cross r bar will be dl r sin theta, right? Then you have used this to find out what is magnetic induction due to a long straight wire. Number one, applications of Biot-Savart law. Number one, you have a current carrying wire which is long and straight. So current in a long and straight wire. I would prefer to say magnetic induction due to current in a long and straight wire. Okay, और आपके बुक का नोटेशन है, I mean this is how they title it, so I'll just keep it synchronized. जैसा बुक में है वैसा ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, doesn't matter. तो this point onwards you need to pay attention properly. हमने कल किया था, आज वापस करेंगे, and it is little lengthy, involves a lot of mathematics. आपके पास एक long straight wire है. By the way, this wire is of infinite length. तो ये एक long straight wire है. इस long straight wire में से there is a current through this. मान लो यहाँ से current I flow हो रहा है, some current I. And you know, whenever current flows through a wire, it generates magnetic induction, magnetic field in the surrounding space. हमारा टास्क यहाँ पे ये है, एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर. दिस इज व्हाट यू सपोज टू फाइंड. देन मैं मान लेता हूं ये ओरिजिन है 0 और ये वायर क्या है, इन्फिनाइट. तो 0 टू इंफिनिटी, राइट. जो प्रॉब्लम यहां था कि डिस्टेंस कहां से मेजर करे, वही प्रॉब्लम यहां भी है, क्योंकि ये 0 to infinity, it's a length, I mean it's very long wire, its length is very very large. तो इसलिए हमने क्या किया था, if you remember, do you remember what we did? हाँ, imagine this wire to be made up of elements, length elements, and consider one such length element somewhere you want, जहां चाहिए वहां ले सकते हो. This is one such length element. आपको चाहिए नीचे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन टेक इट एनीवेयर यू वांट, राइट. देन बायोट-सावर्ट लॉ, क्या किया था आपने, सेंटर ऑफ द लेंथ एलिमेंट को उस पॉइंट से कनेक्ट किया थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सेंटर से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन. इस डिस्टेंस को क्या हुआ था. देन dl वाज अ वेक्टर. तो dl ये एक वेक्टर है, दिस इज dl बार. इसमें और इस लाइन में जो एंगल बना उसको बोला था थीटा. इज दिस क्लियर. आगे मैथमेटिक्स है, तो क्या पैरामीटर क्या है समझ लो. दिस इज r इज फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट टू द पॉइंट, एंड क्योंकि इसको ओरिजिन माना है तो इसको बोल देंगे, चलो ये डिस्टेंस की कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस से इट इज मे बी r, कैपिटल R. जो चाहे वो बोल सकते हो. आई एम कॉलिंग इट एज कैपिटल R. ओके, सो जस्ट अ मिनट, आई नीड टू इंक्रीज द लेंथ लिटिल बिट. इट इज नॉट इंक्रीजिंग, नाउ इट इंक्रीजेस. सो एनीवेज, हुआ तो हुआ, अदरवाइज विल जस्ट कंटिन्यू. एनीवेज, फॉरगेट अबाउट दिस, समटाइम इट हैपेंस. तो then you have to apply Biot-Savart law. क्या देगा आपको वो, it will give you magnetic field, magnetic induction. कहां पे, P point. किसकी वजह से, current through length element. Do not forget this. So magnetic induction at point P due to current through small length element dl is given by dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Right? Clear? Then इसके बाद क्या किया था, इंटीग्रेशन. हमें फाइंड करना है व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू
whole wire and not only small element. We have assumed this wire to be made up of small elements, right? पूरा का पूरा वायर DL 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 DL, तो ऐसा क्यों होगा कि एक ही DL मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता. दिस काइंड ऑफ अनबायस्ड नेचर इज नॉट अलाउड. तो जितने भी DL आपने लिए हैं, ईच लेंथ एलिमेंट विल प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक इंडक्शन. तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी समेशन DL, मतलब पहले ने जितना प्रोड्यूस किया dB प्लस दूसरे ने कितना किया dB प्लस तीसरे ने कितना किया dB प्लस dB प्लस dB प्लस dB. तो जब बहुत सारे लेंथ एलिमेंट होते हैं तो व्हाट यू डू इज इंटीग्रेशन इंस्टेड ऑफ समेशन. इंटीग्रेशन कहाँ यूज करते हो? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. तो कंटिन्यूअस है ना, ऐसा था क्या DL फिर गैप फिर D, ऐसा था नहीं. तो नंबर 1 और एक चीज है, I told you कि this wire goes up to infinity. So why it should only go from 0 to infinity? It can also go minus infinity. So this wire extends from minus infinity to plus infinity. तो जो लेंथ एलिमेंट ऊपर के हाफ में मतलब पॉजिटिव साइड में है, वैसे ही लेंथ एलिमेंट नीचे भी होंगे. मतलब यहां का भी जो करंट होगा वो भी मैग्नेटिक इंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? करंट कहां से आया? किस में से पास हुआ? DL. लेकिन ये पूरे वायर को हमने अज्यूम किया है DL 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 DL, सो इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स. तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे निकालते हो? इंटीग्रेशन. कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. ओके, 0 से इंफिनिटी बोलोगे तो बोल सकते हो, लेकिन इफ यू से 0 टू इंफिनिटी मतलब यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट upper part, contribution to the magnetic field from the upper part, right? So better is to write down minus to plus dB, right? कल मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज बताया था कि अपर पार्ट का कंट्रीब्यूशन इक्वल टू लोअर पार्ट का कंट्रीब्यूशन. टोटल कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम लोअर पार्ट प्लस अपर पार्ट, मतलब 2 times ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अपर पार्ट. तो I told you yesterday, magnetic field contribution from the upper part is integration 0 to infinity dB. From the lower part is minus infinity to 0 dB, right? Then total magnetic induction was contribution from the upper part of the wire plus lower part of the wire, but जितना ऊपर से कंट्रीब्यूशन आएगा उतना ही नीचे से आएगा, इसलिए आपने लिखा था 2 times ऑफ P. गुड, राइट? वैसा लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है. बट इफ यू नो मैथमेटिक्स आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यू नो, दिस इज सिमेट्रिक लिमिट्स. व्हाट इज सिमेट्रिक लिमिट्स? -2 to +2, -1 to +1, -3 to +3, -100 to +100, minus infinity to plus. Symmetric limits बोलते हैं. When you have symmetric limits in integration, you can directly write down 2 times of 0 to infinity d directly. मतलब वही था जो मैंने बताया, 2 times of contribution from upper part. It is the same. आपको ऐसा लिखना है, ये शॉर्टकट है. आपको ऐसा नहीं लिखना है तो जैसा मैंने कल बताया वैसा करो. तो यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द वायर, अपर पार्ट ऑफ द वायर is du इंटीग्रेशन 0 to infinity dB, क्योंकि ऊपर का वायर भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड किया गया है इसके लिए. यहां तक क्लियर? इज दिस क्लियर? यस. जिनको अभी भी लिंक नहीं लग रही है, आई एम टेलिंग यू अगेन, लिंक लगा लो. व्हाट इज आवर टास्क? फिजिक्स को सिंपल करने का अगर आपको करना है सिंपली, तो उसके लिए एक छोटा सा मेथड है.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग. व्हाट डू यू वांट टू डू? क्या करना है? यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट सम पॉइंट ड्यू टू अ इनफिनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट. तो क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक इंडक्शन. पहले ये पता होना चाहिए. दूसरा मेथड पता होना चाहिए. कैसे करोगे? डिवाइड दिस वोल वायर इनटू स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट. फिर बोलो कि एक लेंथ एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया समवेयर. Current I passing through this length element will generate magnetic induction at point P. Small amount of magnetic induction dB. क्यों small amount? क्योंकि length element भी small था, right? Then total magnetic induction from the upper part, क्योंकि this wire is from minus infinity to plus infinity. So from the upper part is 0 to infinity integration over all the magnetic contribution from DL, फिर DL, फिर DL. क्योंकि ऊपर के पूरे वायर में आपने डीएल डीएल लेंथ एलिमेंट लेके रखे हैं, तो हर एक में से करंट जा रहा है. तो अगर करंट यहां से जा रहा है तो करंट यहां से भी जाएगा. अगर यहां से जा रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. उसके ऊपर का जो लेंथ एलिमेंट है वहां से भी करंट पास होगा, वो भी फील्ड जनरेट करेगा. तो दैट इज व्हाई यू हैव रिटन इट 0 टू इंफिनिटी. करेक्ट? अब इंटीग्रेट करो. नाउ B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी. ये आपका आ गया अपर पार्ट का. अपर पार्ट का dB. dB क्या था? I dl sin theta by r square, right? But did you write down mu 0 by 4 pi? No. Where is this mu 0 by 4 pi? You should be writing down mu 0 by 4 pi. Okay? mu 0 constant, 4 pi constant. Current steady है. मैंने पहले ही बताया फर्स्ट डे ऑफ दिस क्लास ऑफ दिस चैप्टर. स्टेडी करंट. करंट स्टेडी मतलब नॉट चेंजिंग विद टाइम, मतलब कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब टेक इट आउट. टेक इट आउट. साइन थीटा को बाहर मत निकालना, आर स्क्वायर को बाहर मत निकालना, और डीएल को तो गलती से भी मत निकालना. क्योंकि इफ यू पुल आउट डीएल, इंटीग्रेशन के वेरिएबल को बाहर निकालने, फिर इंटीग्रेट किस पे कर रहे हो? यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर डीएल 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 डीएल. उसको ही बाहर निकाल लिया तो खत्म. ओके? तो एनीवेज, नाउ साइन थीटा आपको चाहिए. यू शुड नो ट्रिग्नोमेट्री. साइन ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये थीटा है, तो यहां का ये जो एंगल है आपके पास, दिस एंगल ओवर हियर विल बी 180 मतलब पाई माइनस theta. So this angle will be pi minus theta. Correct? What is sine by definition? Opposite upon hypotenuse. So sine of pi minus theta, which is sine theta, but sine of pi minus theta is also capital R by small r. मतलब in short इन दोनों इक्वेशन आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू आर बाय स्मॉल आर. क्लियर? ये साइन थीटा यू विल सब्स्टिट्यूट हियर. यू विल हैव म्यू 0 बाय 4 पाई आई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी डीएल एज इट इज. साइन थीटा इज आर बाय आर, और ये आर स्क्वायर ऑलरेडी वहां पे है. तो यू विल हैव दिस एज म्यू 0 बाय 4 पाई आई dl 0 टू इंफिनिटी. r अभी r निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट. वंस यू डिफाइन अ पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यू हैव सेड r इज कांस्टेंट. क्योंकि मैंने पहले डिफाइन किया ना, ये पॉइंट यहीं पे होना चाहिए. अगर यहीं पे होना चाहिए तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो दिस r इज कांस्टेंट एंड कैन बी टेकन आउट अपॉन r क्यूब. बट r इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल. तो एक साइड, ये जो साइड है इसका डिस्टेंस को भी हम कुछ मान लेंगे. लेट अस से L, बिकॉज इट अलोंग द लेंथ, इसलिए L. तो ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर. मतलब R इक्वल टू एल स्क्वायर पर प्लस आर स्क्वायर का रूट. क्लियर यहां तक? देन इसका भी क्यूब है. अब आपने बताया r इज एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट.
इसका क्यूब मतलब इसका क्यूब करना, तो यू विल हैव दिस एज म्यू 0 बाय 4 पाई आई आर 0 टू इंफिनिटी dl upon L square plus R square raised to 3 by 4. Correct? Now, after this step, your books give you answer directly. The integration कहाँ से I don't know. Direct answer. So you need to know this is a standard integral. There are some standard integrals which you should know. X raised to n का integration क्या होता है? N plus 1 by n plus 1 plus constant if there are no limits. So such integrals are called as standard integrals. So this is one of the standard integrals. ये जो integration है, it is one of the standard integrals. dl upon L square plus R square raised to 3 by 2 is equal to L by R square 1 upon under root of L square plus R square. ये ऐसा आता है. Okay. But what was the length of wire? Length of wire long and straight कितना length? Infinity. और ये जो r डिस्टेंस है जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो कितना दूर होगा? 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, राइट? सो यू कैन से बट L is very greater than R, right? Correct? So it is just like adding 1 drop of water into ocean. So L square plus R square, L is already very large. So L square plus R square is approximately equal to L square. Okay. Therefore, this integration, मैं इसको equation 1 बोलता हूँ. This integration dl upon L square plus R square raised to 3 by 2 will be L by R square. L square plus R square is approximately equal to L square. अगर रूट लिया तो L मतलब L कैंसल मतलब क्या आया 1 by. तो इक्वेशन 1 में ये इंटीग्रेशन की वैल्यू डालनी है 1 by R square. So therefore ये मैग्नेटिक फील्ड किसका था? ओनली अपर पार्ट. रिमेंबर लोअर पार्ट की बात ही नहीं की क्योंकि यू आर टॉकिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. तो अपर पार्ट का जो मैग्नेटिक इंडक्शन आया है दिस विल बी म्यू 0 बाय 4 पाई आई और R और 1 बाय R स्क्वायर. ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स लिख के कुछ मतलब नहीं है. क्यों मतलब नहीं है? इंटीग्रेशन का वेरिएबल कैंसिल हो गया. dl रिमेंबर यू आर इंटीग्रेटिंग ऑन L. जैसे dx पे इंटीग्रेट कर रहे थे और इक्वेशन में x ही नहीं आया. दैट इज अ कांस्टेंट. मतलब यहाँ पे इट डजंट मीन एनीथिंग. यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन दिस. कोई मतलब ही नहीं है इसका. सो कैंसल एंड कैंसल. Therefore, magnetic field contribution from the upper part is mu 0 by 4 pi I by. Why is this important? Because sometimes JEE NEET specifically CET में तो इतना नहीं आता है, but they may ask you, you have a long straight current carrying wire and current value is let us say 2 ampere. Okay, what is the magnetic induction at a 0.5 meter away? 5 मीटर मतलब R की वैल्यू दी है, right? Okay, and I was 2, right? और ये था आपके पास 10 पावर -7 और ये था 2 by 5, 4 by 10, 0.4 into 10 पावर -7, 4 into 10 पावर -8, right? गलत. क्यों गलत? अपर पार्ट है, राइट? करेक्ट. दिस इज ओनली अपर पार्ट. अगर बोला होता व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनली द अपर पार्ट देन इट इज राइट. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हाफ द लेंथ ऑफ द वायर देन इट इज राइट. क्लियर? हाँ, तो ये छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना. फिर बोलना देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर अभी बोल सकते हो मैग्नेटिक इंडक्शन due to
both upper and lower parts of the wire is B is equal to BU plus BL, but BL is equal to BU. Therefore, B is equal to BU plus BU, that is 2 times of BU. Therefore, you will have this as 2 times of BU, 2 times of mu 0 by 4 pi I by R. Correct? Clear? Okay. So अब in some books they may cancel out 1 and 2, some may not. ठीक है, जो भी है. I'll keep it like this because mu 0 by 4 pi की वैल्यू 10 पावर -7 पता है, इसलिए मैं 4 को कैंसिल नहीं करूंगा. I want to keep it like this. यहां तक क्लियर? तो you have followed each and every step. Notes I've already uploaded. याद रहेगा? ओके. तो अगर ये याद रहेगा तो लेट मी ask you a question then. This is a long straight wire carrying current I1. You have a point, some point P at a distance of, let us say, A. What is the magnetic field at point P? What is the magnetic field at point P due to current in the wire? Mu 0 by 4 pi 2 I by A. Very good. Good. तो ऐसा मैंने इसलिए पूछा, अगर आपको याद है तो ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, पहला लेक्चर जब हमारा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था इफ यू हैव 2 वायर्स केप्ट नियर बाय, एक में करंट है तो वो दूसरे वायर के लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर दूसरे में भी करंट है तो दूसरा जो है इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जनरेटेड बाय वायर नंबर 1. तो इफ यू रिमेंबर, लिंक करना सीखो. आपने चैप्टर स्टार्ट किया था बाय गिविंग सम इंट्रोडक्शन, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव इंट्रोडक्शन. 2 वायर है, if 2 wires are nearby and if they have same current, same मतलब like current मतलब same direction, they start attracting each other. Like charges repel but like current मतलब current in the same direction they attract. अगर आपके पास 2 straight wire है, दोनों में से आपने current circulate किया bottom to top, so they will start attracting each other and the wires will become something like this. दोनों में करंट का डायरेक्शन था सेम. अगर एक में करंट का डायरेक्शन आपने उल्टा कर दिया, उल्टा, तो दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, so it becomes something like this. ओके, तब मैंने बताया था दिस इज जस्ट क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन. फिर हमने स्टार्ट किया था बाय टेलिंग what is the force acting on a single moving charge in external magnetic field. Do you remember equation? Q V bar cross B bar, right? Clear? एक single charge which is moving in an external field, Q V bar cross B bar. फिर आपने बोला what is the force acting on a current carrying wire inside external magnetic field. Do you remember what was equation? Do you remember what was equation for a current carrying wire kept in an external magnetic field? Force on wire. Force on wire. Force acting on which force? Magnetic force acting on current carrying wire. Yes, B I L sin theta. Clear? That time I told you we don't care for the source of this. कहीं से तो आया, I don't care कहां से है, right? Clear? Now you care in this case because
एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, पहली वायर में अगर करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कहां पे? सराउंडिंग स्पेस में, राइट? और अगर उस सराउंडिंग स्पेस में सेकेंड वायर है विच इज कैरिंग करंट, तो इट इज लाइक अ करंट कैरिंग वायर इनसाइड द फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, राइट? तो फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर, यू कैन से फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू करंट इन द फर्स्ट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। वो फॉर्मूला याद रखना, क्या था? वेरी गुड, ओके, बिल साइन थीटा। लेट अस से दोनों वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है, मतलब दोनों का लेंथ L एंड L है, गुड। और ये B क्या था? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, राइट? फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहे हो? सेकेंड पे। तो B कौन जनरेट कर रहा है? फर्स्ट, तो दिस विल बी B1, करेक्ट? करंट किस में होना चाहिए फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए? सेकेंड वायर में, तो दिस विल बी I2, राइट? और लेंथ किसका होना चाहिए? सेकेंड का, L2, बट L1 एंड L2 आर इक्वल, तो मैं सिर्फ बोलूंगा L, साइन ऑफ थीटा। व्हाट वाज थीटा हियर? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, याद है क्या? if you remember, force acting due to magnetic field was I L bar cross, तो जब L bar cross B bar लिख रहे हो मतलब एंगल L और B का होगा, राइट? तो लेंथ इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, राइट? तो ये लेंथ ऐसा जा रहा है, वायर का लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? पहली वायर ने जनरेट किया, अब उसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। फिर आपको याद है वो राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन, और मैंने इमेजिन से बोल्ड लेटर में लिखा था, अदरवाइज यू गो होम एंड imagine the wire to be held in your right hand with the thumb outstretched and fingers curled around. If thumb gives you direction of current, fingers give you direction of magnetic field. तो अब मेरा हाथ थोड़ा छोटा है, but imagine, okay? So where is magnetic field going? Inside. तो ये आ गया B1 का डायरेक्शन विच इज इनसाइड। लेंथ कैसा था? मैग्नेटिक फील्ड इज, व्हाट इज द एंगल? 90, तो यू हैव B1 L I2 into L, ये आ गया आपका फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, करेक्ट, राइट? बट ये B कैसे फाइंड करते हैं? What was the distance I told you? A. So this will be mu 0 by 4 pi to कौन सा I1 by A. ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू 1 at the location of second. Is it clear? So I2 L. This is the force acting on 2 due to 1. Let us go a little bit back in time to electrostatics. Charge 1 exerting force on charge 2, if both are positive, of course. The force was directed, force on 2, कौन लगा रहा है? 1. So force on 2 due to 1, pushing away. सेकेंड चार्ज को पहला चार्ज अवे पुश कर, आई डोंट लाइक यू, गो। ये बोलेगा तुझे जरूरत नहीं है तो तू भी गो, सो गो मतलब गो। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज दिस, करेक्ट, राइट? These two forces are equal in magnitude but opposite in, मतलब you actually when you write this you say that force cannot exist in singular form, it has to be a couple, जोड़ी, pairs, okay?
it has to be in the form of pairs, right? तो अगर पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. देन कंडक्टर 2 also has current. मतलब कंडक्टर 2, वायर 2 भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा in its surrounding space. And now conductor 1, which is carrying current, is sitting inside the field of magnetic field produced by second. मतलब फोर्स, पहला कंडक्टर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड. मैग्नेटिक फील्ड किसका? सेकेंड का. करंट किस में? पहले में. लेंथ तो दोनों का सेम ही था, साइन थीटा. इज दिस क्लियर? यस. डायरेक्शन. इमेजिन thumb gives you direction of current. Curl fingers तो at the location of 1 outside, the magnetic field is coming outside. Magnetic field due to second conductor is coming out at the location of first. So it is coming out at the location of first. मतलब डॉट, आपको याद होगा डॉट एंड क्रॉस सिंबल. डॉट सिंबल मतलब कमिंग आउट, क्रॉस मतलब गोइंग इनसाइड. गुड. ओके. तो व्हाट इज एंगल बिटवीन करंट एंड अगेन 90? तो साइन 90 विल बी अगेन 1. B2, हाउ डू यू फाइंड आउट B2? म्यू 0 by 4 pi to I2 this time, because magnetic field is generated by second, by A I1 L. Correct? Right? So as you see, mu 0 4 pi 2A, mu 0 4 pi 2A, I1 I2 I1 I2 L or L. So magnitude wise these two forces are same. Therefore magnitude wise forces F12 and F21 are equal, right? Correct. Let us find out direction. अब यहां पे डायरेक्शन के लिए जैसे आपका राइट हैंड स्क्रू रूल था, वैसे अब यहां पे एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है. स्ट्रेच थंब, middle finger and index finger and keep these three at 90 degrees to each other, perpendicular to each other. Okay, then one of this will give you direction of current, one of this will give you direction of magnetic field, और बचा हुआ तीसरा will give you direction of force. अगर याद नहीं है, क्योंकि हो सकता है पूछ लेंगे, राइट नोट ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, समझो पूछ लिया और याद नहीं है हमको, फिंगर क्या था, मिडल फिंगर कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, एटलीस्ट इतना तो पता है कि दोनों में करंट बॉटम टू टॉप, इतना तो पता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करने वाले हैं, राइट? तो फोर्स एक्टिंग इज बेसिकली अपोजिटली डायरेक्टेड. तो यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन है, ये तो पता ही है. फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2. बना लो फिर रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बना लो. एक फिंगर को यू हैव टू गिव डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इंडेक्स एंड मिडल फिंगर करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से एक होगा. ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड रूल, याद रखना. करंट कहां जा रहा है? ऊपर, राइट? करेक्ट. यहां पे फील्ड इज गोइंग इनसाइड, तो फोर्स इज थंब, लेकिन फोर्स इज पॉइंटिंग अवे, बट फोर्स का होना चाहिए टुवर्ड्स. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. व्हाट इज रॉन्ग? लुक, ऐसा किया तो मिडल फिंगर इज गोइंग वेयर?
अरे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इंडेक्स फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट? करेक्ट। पर ये तो आउटसाइड आ रहा है ना ऐसे, व्हाट इज रॉन्ग? थंब करंट है, ओके, थंब को हम करंट का डायरेक्शन देते हैं। then look, you have to decide now. If this is current, then what? I will make you think. तो बता दिया तो हो गया। लेफ्ट हैंड से बात नहीं बन रही है, राइट? हो रहा है क्या? नहीं, राइट हैंड चेक करो। You have to keep checking. You have to keep checking. You see, if index finger is pointing in the direction of thumb is magnetic field, so middle finger is giving you force, correct? Right? है ना? हाँ, अच्छे से सोचो। क्रॉस एंड डॉट समझा नहीं आप लोगों को? क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनसाइड। तो you have to think inside. What is going inside? Magnetic field. Magnetic field is inside. Inside. Cross is inside. तो लेफ्ट हैंड ही सही था। You forgot about cross and dot. जो अंदर जा रहा है उसको बाहर निकाल रहे हो, जो बाहर आ रहा है उसको अंदर डाल रहे हो। Cross is going inside, मतलब magnetic field is going inside. Index finger is current. Middle finger is okay. Correct? Right? So this is how it works. यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। Magnetic field is coming out, current is up, and middle finger is force. Correct? So this is how it works. So direction is given by Fleming's left hand rule. Okay? एक बार जाके वापस चेक करो। Direction of force in case of two current carrying wires. Is this clear? Good. So do you remember how to derive this? Yes. Now there's another question. The question is, ये तो आपने जो force निकाला है, this is the force acting on complete length of the wire. पूरा का पूरा length. कितना length लिया आपने? L and L. If I want to find out what is the force acting on यूनिट लेंथ ऑफ वायर, मैंने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर किया यहाँ पे। स्मॉल मतलब कितना? स्मॉल यूनिट। यूनिट मतलब कितना? 1 मीटर। सो आई वांट टू नो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर। कैसे फाइंड करोगे? फोर्स डिवाइड बाय एल। गुड। मतलब यू टेक दिस इक्वेशन, यही इक्वेशन लो, force 1 2 equal to force 2 1 equal to F. What was this? 0 mu 0 by 4 pi 2 I1 I2 L by A. ये था फोर्स, राइट? टोटल फोर्स किस पे? पूरे वायर पे। हमको क्या चाहिए? फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ तो कुछ नहीं, इसको यहां से उठाना, यहां पे रखना, हो गया। Yes, mu 0 by 4 pi 2 I1 I2 by A. This is force per unit length. So, force acting per unit length on each wire, क्योंकि दोनों पे ही हो रहा है, wire 1 पे भी wire 2 पे भी, is given by, that is denoted by small f, that is total force by length, that is mu 0 by 4 pi 2 I1 I2 by A. करेक्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से पेयर था, यहां पे भी पेयर ही था, राइट? तो नाउ यू कैन कंपेयर टू चार्जेस एट रेस्ट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दोस टू चार्जेस, F12 बार इक्वल टू माइनस F21 बार। यहाँ पे चार्जेस तो रेस्ट पे नहीं है, बट स्टेडी करंट है। यहाँ पे भी फोर्स 1 2 बार इज माइनस ऑफ फोर्स 2 1 बार, मतलब यहाँ पे भी कपल है, एक्शन एंड रिएक्शन। गुड। तो हमने ये जो डेरिवेशन किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट
current carrying wire at some point P at a distance of R. क्यों किया? Because you want to know exactly what is magnetic field in terms of this distance R, which turned out to be mu0 by 4 pi 2I by R. Correct? इसका application यहाँ पे force acting between two current carrying conductors, parallel wire. क्योंकि आपको पता है अगर पहले में से करंट पास हो रहा है तो it will generate magnetic field at the location of second at distance A, which is given by mu0 by 4 pi 2I by distance R. यहाँ पे distance A. अगर यही नहीं पता होता तो ये formula you cannot derive. And also remember how to use this. That is why I will go one step ahead. Confusion नहीं होना चाहिए इसके लिए. अभी आपने पहले कैसे याद रखा था? बिल sin theta. Just make a small change. Be external. That's it. क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड कंडक्टर तो ये पहले से आएगा, क्योंकि ये सेकेंड का नहीं हो सकता, एक्सटर्नल है. और यहाँ पे 2 और 2 आएगा, राइट? तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1. अगर आप यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन 1, तो दिस विल बी B2 I1 L1 sin theta and 2 here, right? Good. अभी इजी लगता है बट JEE नीट क्या चीज कहां से आ रही है, डोंट अंडरस्टैंड, राइट? इज दिस क्लियर? Okay, so that's it for today. We'll stop at this point.